Good morning, students. In Advanced Java Programming, Unit number 7, Java Web Framework, in which we had discussed about the Spring Model View Controller architecture, right, in a previous session. Now, today we will see some dependency and the advantage of a Java Bean class and the architecture of a Java Bean, right. So, let's start. Basically, if we talk about a dependency or in a previous session, if you know that we have discussed a Spring MVC architecture in which the object is bind or the value is accessed or set by a getter and a setter method. So basically, if we talk about a dependency, it means if there is a no any dependency without any dependency injection, or we can say that simply without IOC, which is a inversion of a control, right? और अपने प्रीवियस सेशन में हमने डिस्कस किया कि व्हाट इज अ आईओसी इन्वर्जन ऑफ अ कंट्रोल, कि वो जो है वो ऑब्जेक्ट का रेफरेंस देता है टू द जावा ऑब्जेक्ट. ठीक है. तो अगर आईओसी का अगर हम यूज नहीं करते और विदाउट आईओसी इफ वी वांट टू यूज और एक्सेस एनी ऑब्जेक्ट, at that time what will happen? If there is a object A, so what the object A can do? Object A can create two objects, object B and object C. It will create it. So if the object is creating its dependency without the IOC, it will lead a tight object coupling. ठीक है. तो वो जो है वो ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करेगा और विदाउट आईओसी जो है वो टाइट कपलिंग करेगा. इट मींस दैट कि वी कैन नॉट change or we cannot further modify that particular object once it is a set by using some value or anything. So if we don't use any IOC, or if we do or give a reference without IOC, then it will leads to a tight coupling of a object. But if we use a IOC or a with a dependency injection, what will happen? It allow the object to create a higher level and it passed into the object so that they can use the implementation directly. तो उसमें क्या होगा कि वो एक हायर लेवल क्रिएट करेगा और वो हायर लेवल जो है वो ऑब्जेक्ट्स को पास करेगा ताकि जो ऑब्जेक्ट्स है वो डायरेक्टली इम्प्लीमेंटेशन जो है उसको यूज कर सके. जैसे कि आप फिगर में देख सकते हो कि मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स जो है वो एक ऑब्जेक्ट के साथ बाइंड हो रहे हैं. तो ये टाइट कपलिंग नहीं है. इट मींस दैट कि अगर ऑब्जेक्ट बी ने सम वैल्यू सेट की है ऑब्जेक्ट ए को, बट फ्रॉम द अदर प्लेस इफ द ऑब्जेक्ट सी इज वांट टू सेट द वैल्यू ऑफ ए, then it can do that by giving the reference. और वो रेफरेंस कैसे देगा? by using the inversion of a control IOC का यूज करके, or we can say by using a dependency injection. So the statement is that कि object A can contain a setter method that accept the interfaces to the object B and a C, and that could have also been achieved with the constructor in object A that accept the object B and object C, right? So if we use IOC inversion of a control, then it can inverse the thing. जैसे कि हमने विद द डायग्राम देखा कि ऑब्जेक्ट्स बी भी सेट करना चाह रहा है, ऑब्जेक्ट सी भी सेट करना चाह रहा है, और हम एक यहाँ पे एक लेवल ले रहे हैं कि ऑब्जेक्ट बी जो है वो सम अदर प्लेस से ऑब्जेक्ट ए को एक्सेस कर रहा है और ऑब्जेक्ट बी जो है वो भी सम अदर प्लेस से उसको एक्सेस कर रहा है. सो इट इज अ पॉसिबल if we use a Spring architecture, right? Okay, let's move next. The advantage of a Spring MVC architecture over simple MVC architecture. What is the advantage over the MVC? So the first thing is that the Spring is a powerful Java application framework which use a wide range of the Java application, right? Spring के पास lots of collections है Java classes के जो हम
यूज कर सकते हैं, राइट। उसके अलावा द स्क्रीन a spring can provide a very clean division of a controller, Java Bean model and a view. It means that कि अगर हम Spring MVC का यूज करते हैं at that time, द कंट्रोलर जो है कि जिसका काम है कंट्रोल करना, मॉडल का काम है ओवरऑल मॉडल डिजाइन करना, और व्यू का काम है कि किस तरह से यूजर को रिप्रेजेंट होगी एप्लीकेशन। तो उसके बीच में जो डिविजन्स है वो एकदम स्मूथली और क्लीनली डिवाइड किए गए हैं, ताकि कोई दिक्कत ना हो, टेस्टिंग में कोई दिक्कत ना हो, और हम वी कैन इजीली टेस्ट और मेंटेन द एप्लीकेशन, जो हमने प्रीवियस सेशन में एडवांटेजेस में देखा था। इसके अलावा इट इज अ वेरी फ्लेक्सिबल, स्प्रिंग इज अ फ्लेक्सिबल, एंड जो एमवीसी आर्किटेक्चर है, स्प्रिंग एमवीसी आर्किटेक्चर इज एंटायरली बेस्ड ऑन द इंटरफेस। वो टोटली जो है वो इंटरफेसिस पे बेस्ड है, कि वहाँ पे मल्टीपल और लॉट्स ऑफ कलेक्शंस ऑफ द इंटरफेसिस जो है वो यूज होते हैं। इसके अलावा every part of the Spring MVC framework is configured by using a plugin your own interface. As we know that the Spring MVC architecture is a plugin framework है एक टाइप का, हम कहीं पे भी उसका plugin कर सकते हैं, right? तो each and every part of the Spring MVC is a configurable, हम उसको configure कर सकते हैं। हम हमारा खुद का इंटरफेस जो है वो यूज करके उनको हम हमारे अकॉर्डिंग, जो हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, नॉट अ रिस्पॉन्सिबिलिटी बट वी कैन से दैट as per our configuration and as per our requirement we can configure the MVC framework. No action form is there, it bind directly to the domain object, कोई भी action form की वहाँ पे कोई भी action form नहीं है, और वो डायरेक्टली जो है ऑब्जेक्ट के साथ जो स्प्रिंग एमवीसी आर्किटेक्चर है वो बाइंड होता है। इसके अलावा more testable code, it means a validation has a no dependency on a servlet API, राइट। जो कोड है वो टेस्टेबल है, वो कोई भी डिपेंडेंसी जो है सर्वलेट एपीआई पे, उसकी कोई भी डिपेंडेंसी नहीं है उसके पास, वो इंडिपेंडेंट है। और इसके अलावा इट कैन ऑफर अ बेटर इंटीग्रेशन विद द व्यू टेक्नोलॉजीज अदर देन द जेएसपी। अगर हम जेएसपी की बात यहाँ पे नहीं करते हैं, क्योंकि जेएसपी हमें पता है कि वो भी एज अ व्यू वर्क करता है एमवीसी आर्किटेक्चर में, बट अगर हम जेएसपी को एक्सेप्ट करके, एक्सेप्ट जेएसपी, अगर हम दूसरे व्यू टेक्नोलॉजीज जो हैं, जैसे कि वेलोसिटी एक व्यू टेक्नोलॉजी है, XSLT एक्सटेंसिबल स्टाइल शीट लैंग्वेज ट्रांसफॉर्मेशन वो भी एक व्यू टेक्नोलॉजी है, फ्री मेकर एक्सटेंसिबल लैंग्वेज, और ऐसे बहुत सारी जो व्यू टेक्नोलॉजी है कि जिसका यूज होता है टू क्रिएट अ व्यू, राइट। इट इज अ इजीली इंटीग्रेट, हम उसको इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं स्प्रिंग एमवीसी आर्किटेक्चर में, ठीक है। तो ये सारे एडवांटेज है स्प्रिंग एमवीसी आर्किटेक्चर के ओवर द एमवीसी। नाउ here are some important interfaces which will used in a Spring MVC architecture, ठीक है। द फर्स्ट वन, आप इंटरफेस का नाम देख सकते हो यहाँ पे, उसका बीन का नेम की जो यूज होता है और उसका जो पर्पज है वो क्या है। जैसे कि हैंडलर मैपिंग के लिए, कि जिसका काम है कि जो रिक्वेस्ट करेंगे इट विल मैप विद द कंट्रोलर, कंट्रोल के साथ उस रिक्वेस्ट को बाइंड करने के लिए हैंडलर मैपिंग बीन क्लास का यूज होता है। इसके अलावा प्लग्स द अदर फ्रेमवर्क्स हैंडलर, उसके लिए कोई डिफॉल्ट बीन नहीं है, डायरेक्टली हम उसका इंटरफेस यूज करके हम दूसरे फ्रेमवर्क्स को प्लग कर सकते हैं हमारे स्प्रिंग आर्किटेक्चर के अंदर। टू रिजोल्व द व्यू रिजोल्वर इज दैट, राइट, विच कैन रिजोल्व द व्यू, व्यू को रिजोल्व करेगा। हैंडलर एक्सेप्शन रिजोल्वर विच कैन मैप द एक्सेप्शन टू द हैंडलर इन अ व्यू, जो भी एक्सेप्शंस होंगे उसको मैप करने के लिए हैंडलर और व्यू के साथ देयर आर ए रिजोल्वर। फिर मल्टीपल रिजोल्वर है कि जो इंटरफेस को हैंडल करेगा फाइल अपलोड के लिए। फिर लोकल है कि जैसे कि जियोग्राफिकल और पॉलिटिकल जो भी डेटा है और उसके रिगार्डिंग जो भी ऑपरेशंस है उसको यूज करेंगे हम, तो उसके लिए लोकल क्लास जो है वो यूज होता है।
तो उसके रिगार्डिंग भी इंटरफेस है। और अगर थीम, जो व्यू जो डिजाइन होता है उसमें अगर हमें थीम चेंज करनी है, थीम को मैनिपुलेट करना है, तो उसके लिए थीम रिजॉल्वर है जिसका यूज होता है। तो दिस आर दी वेरियस इंटरफेसेस which is used in a framework architecture. Now, the Java Bean class versus a basic Java class. Basically, a bean is a Java class, but a Java class does not have does not have to be a bean. It means that कि जो bean class है वो Java class है एक टाइप का, but जो Java class है वो bean नहीं हो सकते, because कि जावा क्लास के अंदर क्या है कि जो भी एक ऑब्जेक्ट्स को हम यूज करेंगे उसका रेफरेंस हम जिस क्लास को देंगे वो उसी से बिलोंग करेगा, हम उसका मल्टीपल यूज नहीं कर सकते। बट इन अ जावा बीन क्लास क्या है, वो हमें एक ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि जिसमें हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को सिंगल ऑब्जेक्ट के साथ मैप कर सकते हैं, और फ्रॉम द वेरियस प्लेसेस वी कैन यूज दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। ठीक है, किसी भी लोकेशन से हम उसको यूज कर सकते हैं। there are no any restriction and it is a very maintainable, we can easily maintain the bean class। तो bean class जो है वो ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को हम सिंगल ऑब्जेक्ट के साथ बाइंड कर सकें, और वेरियस प्लेसेस से जाके हम उस सिंगल ऑब्जेक्ट्स को यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द आवर रिक्वायरमेंट। बट जावा क्लास को हम जो है वो मल्टीपल प्लेस से यूज नहीं कर सकते हैं, हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स एक ऑब्जेक्ट के साथ उसमें बाइंड नहीं कर सकते, राइट। और जो जावा बीन है इज अ जावा क्लास कि जो फॉलो करता है सम कन्वेंशन। पहली चीज कि इट शुड हैव अ नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर, उसके पास जो कंस्ट्रक्टर है वो नल कंस्ट्रक्टर है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है कि जो कोई भी आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट नहीं करता है, वो सीरियलाइजेबल टाइप का क्लास है। और इट शुड प्रोवाइड अ मेथड फॉर गेटिंग एंड सेटिंग द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी विच इज अ नोन एज अ गेटर एंड सेटर मेथड, कि जो हमने हाइबरनेट के टाइम उसका यूज किया था, गेटर एंड सेटर मेथड का। ठीक है, तो ये सारे कन्वेंशन है कि जो जावा बीन क्लास फॉलो करता है। इसके अलावा हम बीन क्लास का यूज क्यों करते हैं, बिकॉज कि जो बीन क्लास है वो एक टाइप का जावा क्लास ही है, बट जो बीन क्लास है इट विल प्रोवाइड अ रीयूजेबल कंपोनेंट। इट मीन्स वॉट एवर द कंपोनेंट वी क्रिएटेड or we can create by using a bean class, we can reuse that particular component, and it can encapsulate the many object into the one object, so we can access the object from the multiple places, and it provide a easy maintenance कि जो मैंने आपको बताया कि why we use a java bean class instead of java class। so these are the point which make a java bean class more feasible for any web application, right? Now this is the java bean architecture where when the user can make a request from the browser, the first request goes to the JSP page। JSP पेज के अंदर जो उसका लॉजिक होगा वो जावा बीन क्लास के पास जाएगा। इट मीन्स जावा बीन क्लास क्या करेगा कि जो जावा JSP पेज से जो ऑब्जेक्ट्स हुए आए उसको एक सिंगल ऑब्जेक्ट्स में बाइंड करेगा, और उसके बाद वो EIS के पास जाएगा कि जो एक टाइप का डेटाबेस है कि जहाँ पे हमारा डेटा स्टोर रहेगा। तो जावा बीन क्लास क्या करेगा, बाय यूजिंग अ गेटर एंड सेटर मेथड इट कैन एक्सेस और सेट द वैल्यू टू और फ्रॉम द एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम से। आफ्टर दैट इट विल receive the response, and again the java bean can send back to the JSP page, and JSP page can make a view and forward that view to the browser as a response। तो इस तरह से पूरी जावा बीन आर्किटेक्चर का वर्किंग है। नाउ जो बीन लाइफ साइकिल है ऑफ अ स्प्रिंग बीन इज इजी टू अंडरस्टैंड, जैसे हमने समझा, हम इजीली उसको समझ सकते हैं कि किस तरह से पूरा फ्लो जाता है। इसके अलावा
when a bean is instantiated, it may be required to perform some initialization to get it into a usable state. It means that कि जब bin जो instantiate होगा at that time there is a maybe a requirement to perform a initialization, ताकि जो multiple objects एक single object के साथ bind होते हैं तो उसको instantiate जब होगा at that time उसको अगेन इनिशियलाइजेशन करने के लिए हमें मे भी हमारे रिक्वायरमेंट आ सकती है, ताकि उसके जो यूजेबल स्टेट्स है वो वहां से वो डेटा को गेट कर सके, फैच कर सके। इसके अलावा सिमिलरली व्हेन द बीन इज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड, जो जिस भी बीन मल्टीपल ऑब्जेक्ट जो हमने बीन ऑब्जेक्ट और बीन क्लास के साथ बाइंड की है, अभी बीन क्लास की कोई जरूरत नहीं है एट दैट टाइम, जो कंटेनर है वहां से उसको रिमूव किया जाएगा और सब क्लीन अप की जो प्रोसेस है वो उस पे कंडक्ट की जाएगी। राइट, तो ये है बीन लाइफ साइकिल कि जिसमें ये दो पॉइंट्स जो है वो खास ध्यान में रखने हैं। सबसे पहला इनिशियलाइजेशन का और दूसरा क्लीन अप प्रोसेस का, कि जब बीन क्लास इंस्टेंशिएट होगा एट दैट टाइम अगर रिक्वायरमेंट है तो इट कैन परफॉर्म इनिशियलाइजेशन टू गेट इट इनटू अ यूजेबल स्टेट। उसका जो स्टेट है जहाँ पे वो यूजेबल है उसको लेने के लिए उसको फिर से इनिशियलाइजेशन उसका करना पड़ेगा, और अगर उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है तो उसको रिमूव कर दो और क्लीन अप प्रोसेस फॉलो करो। एंड दिस इज द लिटिल डेमो एग्जांपल ऑफ अ बीन लाइफ साइकिल, कि जहाँ पे हमने एक हेलो वर्ल्ड क्लास लिया, एक स्ट्रिंग मैसेज लिया, इनिट मेथड को कॉल करवाया और इनिट मेथड में हमने उसको इनिशियलाइज करवाया एक सिंपल मैसेज से कि बीन इज गोइंग थ्रू इनिट मेथड के साथ वो आगे बढ़ रहा है। उसके बाद एक सेट मैसेज लिया जिसमें हमने स्ट्रिंग को पास किया और उस स्ट्रिंग को हम क्या करेंगे, दिस डॉट मैसेज करके हम उसको इनिशियलाइज करवाएंगे कि ताकि वो मैसेज को सेट करे। सबसे पहले ये मैसेज सेट हुआ। नाउ टू गेट द मैसेज वी कैन क्रिएट अ गेट मैसेज एंड इन विच वी कैन प्रिंट आवर मैसेज कि जो हमने इनिशियलाइज करवाया है, और उसके बाद डिस्ट्रॉय मेथड के अंदर हम क्लीन अप की प्रोसेस फॉलो करेंगे। ये है सिंपल सी बीन लाइफ साइकिल जो फॉलो होती है वेब एप्लीकेशन के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा चैप्टर नंबर 7 और लास्ट चैप्टर ऑफ एडवांस जावा प्रोग्रामिंग वो होता है कंप्लीट। इसी के साथ हमारा जो सिलेबस है एडवांस जावा प्रोग्रामिंग का वो भी यहाँ पे होता है कंप्लीट। राइट, अगर किसी को कोई भी डाउट हो किसी भी टॉपिक में तो जस्ट राइट डाउन इन अ मेंटर ग्रुप एंड आई विल गेट बैक टू यू। राइट, कोई भी डाउट है कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, so this is it for this session, right? With the revision sessions we will meet again, right? तब तक के लिए goodbye.